So question number 49 says nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiments by the last quarter of the 19th century. Analyze the statement with examples. So जो nationalism है हमारा राष्ट्रवाद, it no longer retained its idealistic liberal, तो कई सारे words हैं यहाँ पर, idealistic, liberal, democratic sentiments. तो आइडियलिस्टिक क्या होता है? समथिंग विच इज कंसिडर्ड आइडियल, की मतलब उसी तरीके से so idealistic means idealistic or the word idealistic originates from the word ideal. Ideal means something which I mean something which has all the attributes which it should have. तो अगर कुछ जैसे एग्जाम्पल से बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर आइडियल बच्चा कहते हैं तो आइडियल बच्चा किस तरीके से होना चाहिए? गुड मॉर्निंग सर. और गुड मॉर्निंग. व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ एन आइडियल स्टूडेंट? तो जो भी आइडियल परसेप्शंस हैं किसी भी चीज के, तो यहाँ पर व्हेन वी से आइडियलिस्टिक, तो वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल नेशनलिज्म. तो आइडियल नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स किस तरीके के होते हैं? तो आइडियल नेशनलिज्म क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी इंक्लूसिव. It is going to involve different kinds of people in it. तो nationalism क्या होता है? It is a feeling of oneness. It is a feeling of belongingness towards the nation. तो common feeling होती है among group of people that they belong to a common nation. Then is liberal. तो जो पहले nationalism था तो it was idealistic, क्योंकि नया नया होता है ना, तो नया नया फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है and people are getting to know about nation and nationalism. तो जब नया नया पढ़ाते हैं तो idealistic होते हैं. तो अगर आपको भी for example ये nationalism पढ़ाया जा रहा है तो for the to begin with you'll also be nationalistic. जो भी होगा जैसे पढ़ाया गया उसी हिसाब से चलते हो, लेकिन उसके बाद में reality check होता है. Your views tend to get modified according to the society or according to your own experiences. तो nationalism when it began, so it was idealistic. जो भी ideal parameters होते हैं कि that there should be a sense of belongingness among all the people who belong to a particular who have common history, common culture और common language. तो एक language बोलते हैं, एक culture बोलते हैं, एक common history है, then we all belong to a common nation. और जो nationalism था which began during the French Revolution, so that was inclusive nationalism. मतलब वो जितने भी exploited लोग थे, so they considered it a fight between the people who have been exploited and the people who are exploiting. So they wanted to liberate all the entire Europe of absolutist institutions or monarchical governments. तो जितने भी absolutist institutions हैं, जितने भी tyrants हैं, monarchs हैं, who rule without the will of the people, they wanted to liberate all the people from their rule. And the liberation was not just political. तो ये तो political liberation हो गया कि जो भी ऐसे monarchs हैं या authoritarian governments हैं, उनके rule से liberate कर देना. The liberation was also economic and social. कि जो inequality है in the society, that is going to get ended, and the economically there is going to be free trade. Free trade होंगे, restrictions वगैरह नहीं होंगे, less number of taxes, better transport and communication. तो ये सारी चीजें liberal part of the nationalistic sentiments में included थी. Then is democratic. Democratic means people are going to choose their own government, and democracy के साथ में it is going to be a republic. So the head of the state is going to be also elected by the people, and it is not going to be a monarch. तो क्या democracy और republic अलग-अलग होते हैं? A country can be democratic without being republic. तो head of the state जैसे president या king होता है, तो UK is a democratic country, but it is not a republic. तो
the sentiments of nationalism were included idealistic principles, were liberal in nature and were democratic. तो ये तीन sentiments, जो ये तीन words हैं, तो these depict certain sentiments. Liberty होनी चाहिए, social, economic, political. Democracy होनी चाहिए, that means people should be able to choose their own government. और idealistic means जो idealistic principles हैं nationalism के, so they were followed. However, जो ये sentiments हैं, these sentiments of the liberal nationalists ended by the or they were completely transformed by the last quarter of the 19th century. तो जब 19th century खत्म होने लगी तो last quarter कौन सा हो गया? 1875 to 1899 लगा रहता है. So this is the last quarter of the 19th century. और इस टाइम में क्या था? Nationalism no longer retained its idealistic, liberal, democratic sentiments. अब ये statement हमें analyze करनी है. Why did this happen? So first of all, this happened because of the growth of imperialism. अभी देखो nationalism grow कर रहा है. अब nationalism में it has created a sense of unity among the people. तो जितने भी लोग हैं they are united amongst each other. और इसमें रोमांटिक मूवमेंट, जो रोमांटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, रोमांटिसिज्म, इसका बहुत बड़ा रोल था. अब जो रोमांटिसिज्म है, ये रोमांटिक मूवमेंट ऑफ नेशनलिज्म है, तो इसमें देयर वाज अ ग्लोरिफिकेशन ऑफ द नेशन, कि वो एंशिएंट टाइम्स में हमारा देश इतना अच्छा हुआ करता था, वी आर अ ग्रेट नेशन एंड वी शुड बी वेरी पावरफुल नेशन. तो हम बहुत ग्रेट ही नहीं है, वी आर आल्सो वेरी पावरफुल. और पावरफुल और ग्रेट होने का सिंबल क्या है? दैट वी रूल ओवर अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज के ऊपर भी रूल करें. सो धीरे धीरे करके जो ये नेशनलिज्म व्हिच वाज इंक्लूसिव, व्हिच वाज लिबरल एंड डेमोक्रेटिक. तो लिबरल मींस व्हिच कॉल्स फॉर फ्रीडम. लिबरल का मतलब फ्रीडम है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जितनी भी फ्रीडम है सारी होनी चाहिए. डेमोक्रेटिक मींस द गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल. लेकिन इसके साथ में क्या सेंटिमेंट्स और ग्रो कर रहे थे बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी? दैट वी नीड टू एक्सपैंड आवर पावर, कि हम अपना जो कंट्री है उसकी पावर एक्सपैंड करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू एक्वायर मोर कॉलोनीज. तो कॉलोनीज बिकेम अ सिंबल ऑफ पावर. तो जो रोमांटिक स्कॉलर्स ने इमेज बनाई थी, अब उस इमेज को बरकरार रखने के लिए, या यूं कह सकते हो कि नेशनलिज्म को यूज किया गया था रूलिंग क्लास ने. अभी फ्रांस में तो मान लो फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक इन 1870 और सो, लेकिन जर्मनी, इटली जैसे जो कंट्रीज थी तो ये डेमोक्रेटिक नहीं थी. इनका यूनिफिकेशन भी जो हुआ था तो दैट वाज लेड बाय द रूलिंग क्लास. जर्मनी में ओटो वन बिस्मार्क था, हु वाज अ जंकर, लैंडलॉर्ड था. इटली में इट वाज लेड बाय काउंट केवर ही है, हाँ. तो इवन ही वाज अमंग द इटालियन एलीट, वो भी इसी तरीके का था, लैंडलॉर्ड टाइप का ही था. सो जो गवर्नमेंट रन की जा रही थी, इट वाज रन बाय दीज पीपल एंड नॉट बाय द विल ऑफ द पीपल. और जो रूलिंग क्लास है, इट इज गोइंग टू सिक्योर इट्स इंटरेस्ट. अब रूलिंग क्लास है, ट्रेड अगर इंक्रीज होगा या अगर इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, मार्केट और ज्यादा वो एक्वायर कर रहे होंगे, रॉ मटेरियल के सोर्सेज अगर वो एक्वायर कर रहे होंगे, तो देन देयर पावर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज्ड. तो अपने बेनिफिट को एक्सटेंड करने के लिए दे यूज्ड स्टेट पावर. और स्टेट पावर के लिए लोगों को भी मैनिपुलेट करना जरूरी होता है. तो लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए उन्होंने ये प्रोपेगेंडा करने शुरू कर दिया था कि दैट आवर नेशन इज अ वेरी ग्रेट नेशन एंड फॉर एक्सपैंडिंग आवर पावर, तो जो नेशनल पावर है उसको एक्सपैंड करने के लिए इट इज नेसेसरी फॉर अस टू एक्वायर कॉलोनीज. और उस टाइम में देखो कंपटीशन जैसे आज के टाइम में कंट्रीज के बीच में होता है, तो उस टाइम में बहुत ज्यादा कंपटीशन हुआ करता था कंट्रीज के बीच में. तो फॉर एग्जांपल जर्मनी और ब्रिटेन, बिकॉज जर्मनी वाज अ ग्रोइंग पावर, ब्रिटेन पहले से एस्टैब्लिश पावर था उस टाइम में, तो जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था. जर्मनी के पास में कॉलोनीज वगैरह नहीं थी, तो जर्मनी एंटर्ड इनटू द रेस ऑफ एक्वायरिंग कॉलोनीज. और इसकी वजह से क्या हुआ,
जो ये एक्विजिशन था, जो एक्ट थी फॉर एक्वायरिंग कॉलोनीज, दिस वाज ड्रिवन बाय द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ओनली, कि नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म बिकेम अ फोर्स बिहाइंड द एक्विजिशन ऑफ मोर कॉलोनीज, जिसकी वजह से कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ एंड इट आल्सो लेड टू ग्रेट पावर राइवलरी। तो अब क्या हो रहा है, नेशनलिज्म की फीलिंग को यूज किया जा रहा है टू एक्वायर मोर कॉलोनीज। तो नेशनलिज्म अपने देश के अंदर तो क्या है, लिबरल है, डेमोक्रेटिक है, दैट इट इज कॉलिंग फॉर फ्रीडम एंड इट इज कॉलिंग फॉर अ गवर्नमेंट व्हिच इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो एटलीस्ट बात इतनी हो रही है, चाहे इंप्लीमेंट हुआ नहीं हुआ। लेकिन बाहर क्या कह रहे हैं वो, दैट वी नीड टू एक्वायर मोर कॉलोनीज टू इंक्रीज आवर पावर। देश की पावर अगर इंक्रीज करनी है तो ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज एक्वायर की जाए। तो व्हाट दैट रिजल्टेड इन एक्सपेंशन ऑफ इंपीरियलिज्म, कि और ज्यादा पॉलिटिकल कंट्रोल एक्सटेंड किया दूसरी कंट्रीज के ऊपर, उनको कॉलोनी में कन्वर्ट कर दिया अपनी, और उनकी फ्रीडम छीन ली। सो नेशनलिज्म फॉर दोज कंट्रीज, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनाइज किया हुआ था, या फ्रांस ने, फ्रांस की कॉलोनीज इंडिया में भी थी, और अब फ्रांस में खुद तो वहां पर रिपब्लिक है। तो फ्रेंच नेशनलिज्म क्या कहता है कि वी आर रिपब्लिक, वी आर डेमोक्रेटिक एंड वी आर लिबरल। तो हम इक्वालिटी भी मानते हैं, वी कॉल फॉर फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी तो वहीं से आया है, एंड वी आर आल्सो डेमोक्रेटिक इन नेचर, कि हम इलेक्शंस वगैरह भी करते हैं, जो हमारा इलेक्टेड जो हेड ऑफ स्टेट है दैट इज इलेक्टेड। लेकिन इंडिया में जहां पर उसकी कॉलोनीज थी, या और जगह पर, फॉर एग्जांपल इंडो चाइना में, वियतनाम में भी फ्रेंच कॉलोनीज थी, तो वहां पर इट वाजंट लिबरल, इट वाजंट डेमोक्रेटिक, वहां पर तो प्रॉपर कॉलोनियल सप्रेशन ही चल रहा था। ठीक है, इसके साथ में जो अफ्रीका है, तो अफ्रीका वाज आल्सो डिवाइडेड अमंगस्ट ऑल द यूरोपियन कंट्रीज। तो इसकी वजह से क्या था, एक तो ये देखो इंपीरियलिज्म एक्सपैंड कर रहा है, इंपीरियलिज्म के साथ में कॉलोनियलिज्म आ रहा है, और दिस इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म is backed by nationalism, and nationalism here was no more liberal and democratic. इसकी वजह से ग्रेट पावर राइवलरी भी शुरू हो गई बिकॉज ऑफ दिस नेशनलिज्म, कि नेशनल प्राइड की बात आ गई थी। अब एक कंट्री के पास में ज्यादा है, दूसरी कंट्री और चाहेगी कि मुझे भी वहां पर मिले, और ज्यादा, मेरी भी पावर ज्यादा हो, आई ऑल्सो एक्वायर मोर नंबर ऑफ कॉलोनीज। तो कॉलोनीज एक्वायर करना, ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज एक्वायर की जाए, तो ये भी एक रेस बन गई। सो देयर वाज अ रेस टू एक्वायर मोर कॉलोनीज अमंग ग्रेट पावर्स। तो ब्रिटेन और जर्मनी का तो बताया था, जर्मनी और फ्रांस का भी था। सो दैट इज व्हाई जर्मनी एक साइड में हो गया और ब्रिटेन और फ्रांस ने एक अग्रीमेंट कर लिया था। तो इस तरीके से ग्रेट पावर राइवलरी शुरू हो गई। इनफैक्ट 1870s में या 80s में समथिंग एक मीटिंग बुलाई गई थी, देयर वाज अ कांग्रेस, आई थिंक, नाम एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, जिसमें जितनी भी मेन पावर्स हैं यूरोप की, सबको इनवाइट किया था जर्मन चांसलर ओटो von बिस्मार्क ने। उस मीटिंग में दैट मीटिंग वाज कॉल्ड फॉर पार्टीशन ऑफ अफ्रीका। तो जर्मनी ने कहा कि भाई हम तो लेट आए हैं कॉलोनीज एक्वायर करने के लिए, लेकिन हमें भी कॉलोनीज तो चाहिए। सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलोनीज होना चाहिए। इक्विटेबल मींस कि भी सबके पास में बराबर बराबर जाना चाहिए, सो दैट एवरी यूरोपियन कंट्री कैन बेनिफिट। तो उस टाइम में देयर वाज अ पेपर पार्टीशन, कि ऑन पेपर इन्होंने पार्टीशन कर लिया था। 1890s में था शायद, जितना मुझे वैसे अभी ध्यान आ रहा है, तो ये लास्ट क्वार्टर में ही था, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द डेट। ठीक है, तो पेपर पार्टीशन किया था। सो ऑन पेपर पूरे अफ्रीका को डिवाइड कर लिया था बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। तो अफ्रीका के लोगों से तो नहीं पूछा वहां पर, सो द विल ऑफ द पीपल वाज नॉट देयर। तो अगर अफ्रीका के लोगों को नहीं पूछा है, तो दैट मींस दिस काइंड ऑफ नेशनलिज्म वाज नॉट डेमोक्रेटिक, और लिबर्टी तो उनकी छीनी जा रही है विदाउट देयर विल, सो इट वाजंट लिबरल एज वेल। ठीक है, तो दिस इज हाउ ग्रेट पावर राइवलरी also affected how nationalism acted in other countries. इसके साथ में एक important aspect ये भी है, the conflict in Balkans. In the last quarter of the century, जो बाल्कन रीजन था, it was becoming independent, और यहाँ पर स्लाव नेशनलिज्म की बात पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, स्लाव नेशनलिज्म was growing.
इनफैक्ट स्लाव नेशनलिज्म एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, लेकिन इसके अलावा और भी नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स थे, और भी जो एथनिसिटीज थी उनके लोग भी उनके बीच में भी नेशनलिज्म की फीलिंग इंक्रीज हो रही थी. और स्लाव नेशनलिज्म वाज नॉट जस्ट लिबरल एंड डेमोक्रेटिक, इट वाज एग्रेसिव एज वेल. एग्रेसिव किस तरीके से? अब स्लाव्स जितने भी थे, लेड बाय सर्बिया, सर्बिया में ज्यादातर स्लाव्स थे, और सर्बिया चाहता था ग्रेटर सर्बिया बनाना, सो दैट ऑल द स्लाव्स रिमेन अंडर अ सिंगल कंट्री. अब सिंगल कंट्री में लाने के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी का कुछ पोर्शन चाहिए था, बट ऑस्ट्रिया हंगरी वाज अ बिग एम्पायर देन, बहुत बड़ी एम्पायर थी, वो ऐसे कैसे दे देगी अपना टेरिटरी. सो ये नेशनलिज्म की वजह से ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इमर्ज्ड इन सर्बिया. सो टेररिज्म, सो टेररिज्म अगर कोई यूं सोचता है ना कि आज का ही है, इट इज अ मॉडर्न फिनोमेना, मतलब इट इज अ फिनोमेना ऑफ द 20th एंड 21st सेंचुरी, तो वो गलत है. टेररिज्म पहले से चलता आ रहा है, एंड इट हैज बीन यूज्ड एज अ स्टेट पॉलिसी एज वेल. तो सर्बिया ने यूज किया था. तो सर्बिया की एक नेशनलिस्टिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी which wanted to unify all the Serbian regions, all the Slav regions. और जैसे कि पहले भी मैंने बताया है कि it was such an organization, तो एक स्लाव नेशनलिस्ट था उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर, जिसने जो ऑस्ट्रियन क्राउन प्रिंस था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, उसको असैसिनेट किया था, जिसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी. तो जो स्लाव नेशनलिज्म था in which was in the Balkans, because of that terrorism also began, terrorism also emerged, and which ultimately led to the first world war. इसके अलावा बाल्कन्स में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, तो 3 बाल्कन वॉर्स हुई थी जैसे. सो आपस में ही लड़ते रहते थे. इनिशियली दे वर फाइटिंग अगेंस्ट ओटोमन एम्पायर, उसके बाद में आपस में भी लड़ाई इनकी चलती रही थी बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, जिसमें कि जो बाकी इंपॉर्टेंट पावर्स हैं लाइक जर्मनी, ब्रिटेन, रशिया, ये भी इन्वॉल्व हो रहे थे. ठीक है. सो दीज आर द 3 मेन पॉइंट्स दैट यू हैव टू राइट. अब ये देखो, ये जो पूरी लंबी चौड़ी कहानी मैंने सुनाई है, सो दिस इज नॉट बिकॉज यू डोंट हैव टू राइट द एंटायर स्टोरी हियर, यू जस्ट नीड टू राइट द मेन पॉइंट्स एंड यू नीड टू एक्सप्लेन देम. कि अगर इंपीरियलिज्म ग्रो कर रहा है, हाँ, तो हाउ इंपीरियलिज्म ग्रू बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म, हाउ ग्रेट पावर राइवलरी was due to rising nationalism in the 19th century, और कॉन्फ्लिक्ट इन बाल्कन्स में भी नेशनलिज्म का क्या रोल था, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं. अभी समझ में आया या नहीं आया वो बताइए. आ गया समझ में? Yes, sir. चलो, मैं होप कर रहा हूँ सही सच्ची बोल रहे हो, वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट. क्योंकि जो मैं जैसे आई एम रेफरिंग टू अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू इन द पास्ट, तो मैं बार में भी इसलिए रिपीट कर रहा हूँ उन चीजों को. सो इफ यू वर नॉट एबल टू रिकॉल, और इफ यू डिडंट पे अटेंशन अर्लियर, यू आर एबल टू पे अटेंशन नाउ. तो चाहे वो सारी की सारी चीजें लिखनी नहीं है, दे आर इंपॉर्टेंट टू राइट अ गुड आंसर. तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक नहीं लिख पाओगे. चलो, 51st है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली. तो इटालियन यूनिफिकेशन का अभी डिस्कस करेंगे हम. देखो, इटली लाइक जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्टेट्स, इन अलग अलग कंट्रीज थी बेसिकली ये. सो वन वाज सार्डिनिया पीडमॉन्ट, दिस इज सार्डिनिया पीडमॉन्ट, और ये सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा इटालियन स्टेट था. अब ये सिर्फ इस साइज को देखकर मत कहना, ये वाला हिस्सा भी सार्डिनिया पीडमॉन्ट का है. ठीक है. सो वन वाज सार्डिनिया पीडमॉन्ट, लॉम्बार्डी था, वेनेशिया, ये नदर्न इटालियन स्टेट्स कह सकते हो, टस्कनी, मोडेना वगैरह है. यहाँ पर किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज हैं, और यहाँ पर पैपल स्टेट्स हैं. पैपल स्टेट्स मींस those states which were ruled by the pope. अगर पोप किसी को नहीं पता है, तो पोप is the religious head of all Christians.
आजकल पोप की हुकूमत चलती है वेटिकन सिटी में, तो पहले सिर्फ वेटिकन सिटी में हुआ करती थी, और ड्यूरिंग दिस टाइम पोप रूल्ड ऑल दीज पैपल स्टेट्स। अभी जो 1815 में जब तक नेपोलियन का टाइम था, तो मैनी ऑफ दीज स्टेट्स सीज टू एग्जिस्ट, कि इनको मतलब खत्म ही कर दिया था नेपोलियन ने, द बाउंड्रीज वर रिमूव। लेकिन 1815 में जो वियना कांग्रेस हुई थी, उसके बाद में जितने भी ये इंडिविजुअल स्टेट्स थे वो रिस्टोर कर देते थे, तो इंडिविजुअल बाउंड्रीज थी वो रिस्टोर कर दी थी, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्टेट्स। जो लोम्बार्डी और वेनेशिया हैं, दीज टू स्टेट्स ये ऑस्ट्रिया को दे दिए थे। अब ऑस्ट्रिया थोड़ा सा बड़ा, ये देखो यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, तो ऑस्ट्रिया बिल्कुल बगल वाला देश था, तो ऑस्ट्रिया ने एक्वायर कर लिया था लोम्बार्डी और वेनेशिया को, तो इसका कंट्रोल यहाँ पर था। इसके अलावा ऑस्ट्रियन इन्फ्लुएंस है। ऑस्ट्रिया मींस ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जिसको हैब्सबर्ग एम्पायर भी कहते थे। तो अगर मैं ऑल्टरनेटिवली यूज कर रहा हूँ ये वर्ड्स, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हैब्सबर्ग एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी या ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये सारे तीनों एक ही हैं। तो ऑस्ट्रिया का ही रूल यहाँ पर भी मतलब इन्फ्लुएंस यहाँ पर था। तो अगर इटली को यूनिफाई होना था, तो इट हैड टू बी डन बाय फाइटिंग ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होगा, उसी के बाद में ही इटालियन यूनिफिकेशन पॉसिबल हो सकता था। इसके अलावा पैपल स्टेट से तो यहाँ पर पोप था। अब पोप का एक सिग्निफिकेंट है, इससे पहले पोप के बारे में बताने से पहले आई लाइक टू इन्फॉर्म कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज थे नेशनलिज्म के या लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी के, these were spreading across Europe. At that time, a number of secret societies had emerged. तो जो भी गुप्त संगठन थे, तो they emerged in Italy as well. और काफी सारे revolutionaries, important revolutionaries also emerged. And one such important revolutionary was Mazzini. Benito Mazzini है, something like that. Mazzini है, who started a movement, a secret society called Young Italy. तो Young Italy भी secret society, Giuseppe Mazzini, जोसेफ मजीनी है ना शायद? yes sir, जोसेफ GISSUF कर गया। मसोलिनी था शायद, बेनिटो yes sir, हाँ वो बाद में आता है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में आएगा मसोलिनी को। ठीक है, मजीनी स्टार्टेड यंग इटली मूवमेंट। तो यंग इटली वाज बेसिकली सीक्रेट सोसाइटी जो कि इटली को यूनिफाई करना चाहते थे। अब मजीनी ने 1815 में ही क्या कर दिया था, 1815 में ही जो पैपल स्टेट्स हैं यहां पर पोप को भगा दिया था। तो मजीनी वाज अ ग्रेट रेवोल्यूशनरी, तो इसके काफी फॉलोइंग भी थी। तो बाकी रेवोल्यूशनरीज के साथ में मिलकर इसने पोप को ही रिमूव्ड पोप फ्रॉम पैपल स्टेट्स, और पोप भाग कर गया फ्रांस के पास में। तो पोप रैन अवे एंड वेंट टू फ्रांस। फ्रांस में उस टाइम तक जो नेपोलियन तो हट ही चुका था 1815 में, और नई जो डायनेस्टी थी बर्बन किंग्स वर रिस्टोर्ड। तो जो पहले रूलिंग डायनेस्टी थी दैट वाज पुट इन प्लेस, और जो बर्बन किंग्स हैं वो वापस से रूल कर रहे थे फ्रांस को। तो पोप वेंट टू द बर्बन किंग्स एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प। तो फ्रांस ने अपने सोल्जर्स भेज दिए वापस, और यहां से मजीनी को वापस से भगा दिया था। तो 1815 में ही क्या हो गया, अब यहाँ पर पैपल स्टेट्स में सिर्फ पोप नहीं है, फ्रांस के ये सोल्जर्स भी हैं। तो फ्रेंच सोल्जर्स वर स्टेशन्ड इन रोम एंड अदर पैपल स्टेट्स। तो यहाँ पर फ्रेंच सोल्जर्स भी हैं, तो मतलब फ्रांस आल्सो बिकेम अ प्लेयर हियर। ठीक है, तो हमारे पास में 3 मेन प्लेयर्स हो गए थे यहाँ पर जो कि इटालियन यूनिफिकेशन चाहते थे या उसके अगेंस्ट थे। एक तो फ्रांस जो कि जिसके सोल्जर्स यहाँ पर हैं, ऑस्ट्रिया जो यहाँ पर है जिसने लोम्बार्डी और वेनेशिया को एनेक्स किया हुआ है, उसके कब्जे में है, और जिसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर मॉडर्ना और ये टस्कनी और एक और जो भी है स्टेट है उसके ऊपर था।
किंगडम ऑफ टू सिसिलीज अलग से और है, ठीक है। तो अगर इटली को यूनिफाई होना था तो इटली हैड टू फाइट विद ऑल दीज कंट्रीज एंड नेगोशिएट विद ऑल दीज थिंग्स टू यूनिफाई इटसेल्फ, ठीक है। तो जैसे जर्मनी में ओटो वन बिस्मार्क वाज द चांसलर ऑफ जर्मनी, उसी तरीके से सार्डिनिया में, सार्डिनिया पीडमोंट या सार्डिनिया शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, तो बेसिकली टू स्टेट्स थे, सार्डिनिया और पीडमोंट अलग अलग स्टेट्स हैं जिनको कंबाइन करके एक एम्पायर थी सार्डिनिया पीडमोंट की। तो सार्डिनिया पीडमोंट का जो एम्परर था उसका भी एक चांसलर था, हु वाज काउंट केवर। सो काउंट केवर he adopted policies which are similar to Otto von Bismarck। तो ऑटो वन बिस्मार्क ने जैसे ब्लड और आयरन की पॉलिसी अपनाई थी, तो उसी तरीके से जो काउंट केवर है उसने भी इसी तरीके की पॉलिसी अपनाई थी। अब अलग अलग वॉर्स की थी, जैसे 1853 में क्रिमियन वॉर थी, तो क्रिमियन वॉर थी, ब्रिटेन और फ्रांस वर फाइटिंग अगेंस्ट रशिया। अब उसमें भी इटली इन्वॉल्व हुआ था टू गेन सम बेनिफिट, लेकिन उसको बेनिफिट वगैरह नहीं हुआ था। तो जैसे बिस्मार्क ने किया था ना पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, तो ही एंगेज्ड इन कंटिन्यूअस वॉर्स। तो काउंट केवर ने भी सोचा कि मैं भी वॉर वगैरह करूंगा एंड आई थ्रू डिफरेंट नेगोशिएशंस, थ्रू डिफरेंट वॉर्स, आई एक्वायर डिफरेंट रीजन्स और आई यूनिफाई एंटायर इटली, ठीक है। लेकिन क्रिमियन वॉर फायदे में नहीं रही। इसके बाद में इन 1958 और 60 देयर वाज अ वॉर बिटवीन आई थिंक ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो इटली ने उसमें ज्वाइन कर लिया था। तो इटली जर्मनी, देखो ऑस्ट्रिया यहाँ पर है, जर्मनी यहाँ पर है, ऑस्ट्रिया और जर्मनी लड़ाई कर रहे हैं, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर एंड जर्मनी उस टाइम में नहीं था, खैर उस टाइम में प्रशिया ही था। सो प्रशिया एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर आर फाइटिंग विद ईच अदर। इटली ने लड़ाई कर ली। नॉर्मली अगर इटली फाइट कर रहा होता, इटली मतलब सार्डिनिया यहाँ पर, तो सार्डिनिया ने अटैक कर दिया ऑस्ट्रिया पर, तो नॉर्मली अटैक कर रहा होता तो ऑस्ट्रिया वुड हैव डिफीटेड सार्डिनिया। लेकिन यहाँ पर टू फ्रंट वॉर हो गई, रशिया के साथ में भी हो गया और ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के साथ में भी हो गया। सो दिस लेड टू ऑस्ट्रियन डिफीट, और ऑस्ट्रिया से ये वाले जो पोर्शन है ये एक्वायर कर लिए थे, और विद टाइम जो ये लैम्बार्डी और वेनेशिया है ये भी एक्वायर कर लिए थे, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के साथ में लड़ाई करके व्हेन वो बाय एंटरिंग इनटू अलायंस विद रशिया, जो नदर्न इटालियन स्टेट्स हैं उनको यूनिफाई कर दिया था और नदर्न इटली का स्टेट क्रिएट कर लिया इन्होंने। इसके बाद में इन 1860 जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है, ये भी दो अलग अलग किंगडम्स थी जो कि बाद में यूनिफाई हो गई थी। इनका जो रूलिंग हाउस है वो सिंगल हो गया था, तो दो अलग अलग सिसिलीज थी, दो कंट्रीज थी अलग अलग जिनका नाम सिसिलीज था, और इनको कंबाइन करके किंगडम ऑफ टू सिसिलीज हो गई थी। यहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था बिकॉज द कंडीशंस वर नॉट गुड। ये जो नदर्न इटली थी, तो दैट नदर्न इटली वाज मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड, ये थोड़ा सा बैकवर्ड रीजन था। तो यहाँ पर लोगों को, जैसे लोग परेशान तो थे ही रूलर्स के अंडर, वर्कर्स पेजेंट्स की कंडीशन वैसे ही खराब रहती थी, तो पीपल रिवोल्टेड नॉट बिकॉज दे वांटेड टू यूनिफाई इटली। तो इटालियन यूनिफिकेशन का कोई मतलब नहीं था, बस उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था बिकॉज ऑफ देयर कंडीशंस। तो इस टाइम में इसका फायदा उठाया जो हमारे मजीनी साहब हैं, तो जोसेफ मजीनी, ही अलोंग विद 1000 मैन, तो सिर्फ 1000 लोगों के साथ में इन्होंने मार्च कर दिया किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में। तो वो यहाँ कहीं थे, तो he marched into kingdom of two Sicilies and he overthrew the entire royal family and all। तो सिर्फ 1000 लोगों के साथ में he took over the kingdom of two Sicilies। और subsequently 1 या 2 साल के बाद में ही ये वाला जो अब कंट्रोल तो यहाँ पर मजीनी का था, हाँ, लेकिन मजीनी gave up his control to the king of Sardinia और द किंग ऑफ नॉर्दर्न इटली देन। तो ये दोनों पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इटली के पार्ट में आ गया। तो ये वाला तो आ गया भाई, जो मजीनी थे, मजीनी एंटर्ड देयर, ही लिबरेटेड दीज एरियाज
एंड ही रिमूव्ड द किंग्स। तो यहाँ पर भी बर्बन किंग्स थे जो फ्रांस वाले रूलिंग डायनेस्टी के थे ना, तो सेम रूलिंग डायनेस्टी, सॉरी ये बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन थे, फ्रांस वाले नहीं। यहाँ पर बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन यूज्ड टू डू। देखो डायनेस्टी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन मैं बस ये बताने के लिए कह रहा हूँ, जो यहाँ पर किंग्स थे दीज वर रिमूव्ड बाय मजीनी, और मजीनी का कंट्रोल आ गया, मजीनी ने जो इटालियन किंग है उसको दे दिया ये कंट्रोल। अब बचा पैपल स्टेट्स की बात। अब यहाँ पर टू एक्वायर दीज, हाँ फ्रांस के साथ में लड़ाई करनी जरूरी थी, तो इसका मौका जर्मनी ने दे दिया था। जर्मनी ने, याद हो तो 1870 में देयर वाज अ वॉर बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में लड़ाई हुई, तो फ्रांस के जो ये सोल्जर्स यहाँ पर थे पैपल स्टेट्स में, तो फ्रांस हैड टू विड्रॉ द सोल्जर्स फ्रॉम पैपल स्टेट्स, क्योंकि अब उसकी लड़ाई चल रही है, वो तो अपनी जगह बचाएगा ना, पोप की जगह बचाने से पहले द मोर इंपॉर्टेंट वाज टू सेव फ्रांस। तो जो सोल्जर्स थे फ्रेंच सोल्जर्स, तो दे वर कॉल्ड बैक टू फ्रांस। अब यहाँ पर सोल्जर्स तो बचे ही नहीं, तो जो इटली की फोर्सेस थी दे मूव्ड इन टू द पैपल स्टेट्स, और रोम यहाँ की कैपिटल हुआ करता था, तो दे मूव्ड इनटू रोम और इटली वाज यूनिफाइड। रोम वाज मेड द न्यू कैपिटल ऑफ यूनाइटेड इटली। ठीक है, ये छोटी सी कहानी है, दिस इज हाउ इटली वाज यूनिफाइड, और ये पॉइंट्स में हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जो कहानी है वो ही मेंशन की है। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन। ये मेंशन किया हुआ है नॉर्थ में कौन से थे, सेंटर में पोप यूज्ड टू रूल, साउथ में it was kingdom of two Sicilies which was under the domination of Bourbon kings. हाँ, ये one thing is important to mention, जो when Italy was unified, तो the people of Italy didn't have the identity, तो वहां पर nationalism नहीं था ऐसा कि the people of Italy didn't know what was actually Italy. So जो Italian language भी है ना, so when people used to say कि भाई Italian language is our national language, या we are Italian, मतलब हमारा nationalism Italian है, तो जो common people थे, हाँ, तो they used to think that Italian is the name of Count Caver's wife. उनको ये भी नहीं पता था कि भाई इटली कुछ चीज है। तो ये भी एक रीजन है, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है कि नेशनलिज्म वाज यूज्ड बाय द रूलिंग क्लास। तो रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी थी नेशनलिज्म इन कंट्रीज में, और नेशनलिज्म वाज यूज्ड बाय द रूलिंग क्लास, जैसे काउंट केवर जैसे लोग या ओटोमन बिस्मार्क जैसे लोग, टू एक्सपैंड देयर एम्स टू एक्वायर मोर कॉलोनीज, टू बिकम मोर वेल्दी। 1830s में जोसेफ मजीनी क्रिएटेड यंग इटली सोसाइटी। 1815 में वो पहले से रेवोल्यूशन हो चुका था, वो मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पर, लेकिन वो बताया इसलिए ताकि आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिल जाए थोड़ा कि फ्रांस के सोल्जर्स वहां पर आए क्यों। ठीक है, आई विल पोस्ट दिस डॉक्यूमेंट ऑन टू द ग्रुप, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। काफी बड़ा हो जाएगा, जो मैंने बताया वो सारा का सारा ही लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स एग्जैक्टली कॉपी नहीं करने हैं, यू हैव टू ट्रांसलेट देम इनटू सेंटेंसेस। और काफी एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखे हैं मैंने, व्हिच वर actually not required from an exam point of view, लेकिन they are important to understand the entire situation. ठीक है, क्वेश्चन 52 देख लेते हैं। What were Jacobin clubs? How did their activities and campaigns help to spread the idea of nationalism abroad? तो Jacobins was a group actually which emerged in France. तो Jacobin जो ग्रुप था, और it propagated the ideology of French Revolution. तो जो ideas थे, liberty, equality, fraternity, और idea of nation state, तो these were primarily promoted by the Jacobins. तो Jacobin से influence होके Jacobin clubs were set up in different parts of Europe. तो अब फ्रांस में Jacobin club आ गए, because of the Jacobin club, more clubs were established around Europe. अब वो वहां पर हो गए एस्टैब्लिश। तो
when these clubs were established, these clubs started to spread ideas of French Revolution into their own countries. तो जो ideas हैं liberty, equality, fraternity के, so they started spreading these ideas into their own population. तो आसपास में लोगों को बताने लगे कि फ्रांस में ऐसा हो गया है और वहां पर इक्वालिटी आ गई है भाई, और बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म ऑल द पीपल ऑफ फ्रांस आर यूनाइटेड, और वो सारे यूनाइट हो गए, उन्होंने किंग को हटा दिया है, तो वी कैन आल्सो डू द सेम. किंग बहुत परेशान करता है, तो वी आल्सो शुड रिमूव द किंग. तो अब इन्होंने बेस सेटअप कर लिया. व्हेन फ्रांस वाज फाइटिंग विद दीज कंट्रीज, अब मान लो फ्रांस फाइट कर रहा है किसी ऐसी कंट्री के साथ में जहां पर जैकोबिन क्लब पहले से ही है, और जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा पहले से स्प्रेड किया हुआ है, जो आइडिया है नेशनलिज्म के या जो आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन है, दे आर ऑलरेडी स्प्रेडिंग इन दोज एरियाज. तो क्या होगा, द पीपल आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट देयर ओन किंग. तो लोग अपने किंग को सपोर्ट नहीं करेंगे. दे सपोर्टेड द इन्वेडिंग फोर्सेस, सो दे सपोर्टेड द फ्रेंच पीपल. जो फ्रेंच फोर्सेस है उनको सपोर्ट किया कि आओ और जो हमारा किंग है उसको हटाओ. सो by this like this actually these clubs helped in spreading the ideas of nationalism. और जब invading forces आई, तो they also brought with them the ideas of French Revolution and the ideas of nation and nationalism. ठीक है, understood? सर हिला दे तो लिखने में क्या हो जाता है? Yes, sir. ठीक है, लिख लोगे? सर जैकोबिन का क्लब बस फ्रांस में नहीं, और भी देशों में थे. सर जैकोबिन्स एक ग्रुप था, तो जो कि पावर में आ गया था फ्रांस के अंदर, और ये इनफॉर्मल ग्रुप था, फॉर्मल नहीं था. आपकी बुक में इसको मेंशन नहीं किया हुआ. वैसे जैकोबिन सिर्फ नाम मेंशन किया हुआ है, इसका प्रॉपर रोल मेंशन नहीं किया हुआ. रेन ऑफ टेरर इन्होंने की थी. तो जो मशीन दिखाई थी ना, जो गिलिटिन मशीन दिखाया था, जो इक्विपमेंट था गर्दन काटने वाला, वो इन्होंने इन्वेंट किया था. तो इन्होंने ही सबसे ज्यादा यूज किया था और गर्दन काटे थी. तो दिस ग्रुप वाज वॉसिफरसली प्रोटेक्टिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि इनको ये एकदम शिद्दत से पड़ गए थे पीछे कि हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन बचाना ही है. तो उसके लिए जिसके ऊपर भी शक हुआ उसको मार दे जाते थे. तो दे वांटेड टू प्रोटेक्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और जो आइडियाज हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे. इंस्पायर्ड बाय दीज जैकोबिन क्लब्स वर सेट अप इन अदर कंट्रीज. तो जो बाकी स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल जर्मन स्टेट्स हैं, ऑस्ट्रियन स्टेट्स हैं, तो वहां पर, या इटालियन स्टेट्स हैं, तो वहां पर जैकोबिन क्लब्स एस्टैब्लिश हो गए थे. और जब फ्रेंच फोर्सेस वहां पर आ रही थी लड़ाई करते हुए, तो दे हेल्प्ड द फ्रेंच फोर्सेस टू इन्वेड दोज कंट्रीज. तो इसलिए फ्रांस इतना एरिया कवर कर पाया था, इतनी सारी कंट्रीज उनको अपोज कर रही थी, उसके बाद में भी ये जीत पाए थे. ठीक है, अभी डिस्कनेक्ट भी होने वाला है, सो वी विल नॉट बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन.